ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੋਹਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਦੇ 26 ਸਾਲਾ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੱਤਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ 20 ਸਾਲਾ ਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ 22 ਸਾਲਾ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁਰਜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। शुरुआती जांच ਅਤੇ मौके ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਤਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਤੱਥ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੇਤਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਗੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਆ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਆ ਆਪਣੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਚੇਤਨ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਹਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਸੱਪ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੈਕ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। तो 18 जून 2026 को एक जो वुड-बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफी ट्रैकिंग की थी उसने। तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ संशय जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है, मार्केट यार्ड में उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 1 से 68
2026 कलम 1 के 3 BNS और 61(2)19 के अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी का इस पूरे मामले में गए क्या ताल्लुक है और सिया के उसके साथ कुछ रिश्ते वगैरह कैसे सामने आए? ते एकाचे संपर्कात आणि संबंधात होते। हाँ, इन दोनों का आपस में संबंध था। जी। क्या ये पहली बार ही हुआ है? इससे पहले इस तरीके का अटेम्प्ट कोई हुआ है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये भी समझ में आ रहा है प्राथमिक तौर पर कि पहले कुछ बाली का प्लान था, फिर उसने पासपोर्ट फ्रॉड किया और बाद में लोहगढ़ का प्लान हुआ। वो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं, इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहां से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था तो ताकि ये कतर बाली ना जा पाए। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहां पे पहुंचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहां पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसके अग्रवाल और गोयल समझ में आ रहा है कि बड़े खानदानी लोग हैं। क्या एग्जैक्टली इनकी फैमिली बैकग्राउंड है और इस पूरे मामले में अभी तक एग्जैक्टली कौन कौन से टेक्निकल एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई किया गया? देखिए, दोनों बिजनेस फैमिलीज हैं। मार्केट यार्ड पूना सिटी में जो है वहां पे दोनों के बिजनेस हैं और हमने अभी तक वो जो भी हमें टेक्निकल हमारे सोर्सेज हैं जिसमें हम CDR, IPDR एनालिसिस करते हैं, CCTV चेक करते हैं, हमारे कुछ गोपनीय सूत्र हैं और उनके रिश्तेदारों के जवाब हैं और उनके आगे जो साक्षीदार हमें वहां पे जो वस्तु स्थिति दिखाई दी है, इस सब के आधार पे ये जो गुनाह है वो डिटेक्ट होकर सामने आया।